Good morning to all. Today I'm going to discuss about the software development life cycles. So we should understand what is the importance of the life cycle models. So life cycle models plays an important role in the development of softwares. They tell us which step we should perform first, then which step we should later perform later on, and so on. So the very basic model which we are following in industries is your classical waterfall model, and this is very traditional method, and it is divided into different phases. And what does it says that first we have to go for the feasibility study. First we do the feasibility study. We will understand what does the feasibility study means. Then we go for requirement analysis and specification. Feasibility, in brief, I can tell that feasibility studies tell that whether the development of a particular product is financially or technically possible or not. Possibility, we work out about the possibility where the development of the product is possible or not. Requirement analysis and specifications, when we are developing a particular type of software, whether what things will be required, what type of software will be required, what how much technical manpower would be required, how much what would be the hardware requirement for the implementation for that particular software. Design, so in industry we are having the technical architect which are designing who are involved in designing of the software. That basically your software project is a too large project and we have to divide the work among different members. So which part we have to give to which member, in that case your designing plays a big role. At last is your coding and unit testing. We have already discussed that whatever may be the type of industry, testing plays an important role, and without testing none of the product is released in the market. Without testing none of the product is released in the market. Okay. So there are different types of testing: unit testing, integration, and system testing. And at last we go for maintenance. Maintenance means once we have released some product, then some fault or some error might occur. Even that particular product is well tested in the testing department. So maintenance is a kind of a you can say that maintenance is a kind of a after sales services. Maintenance is a kind of a after sales services, and we will discuss about these testings: unit testing, integration testing, and system testing further. The basic, in nutshell, these are testing where we are testing from a very small unit to the complete system. Okay. So this is your classical waterfall model, and it is divided into different phases. First phase is your feasibility study, where we work out whether the development of a project is possible or not. Once it is decided by the team, by the senior members that development of the project is possible, then what is the requirement, what we require, हमें जरूरत क्या पड़ेगी, क्या क्या requirements रहेंगी उस particular project को या software को develop करने के लिए. And after that we go for designing, and there are different types of designs, and because in that particular design we decide which module will be given to which development engineer. Okay. So in coding phase we code the module, and which is coded by individual developer. Individual developers are coding these. Similarly, these two are the next phases, that is testing and maintenance. Testing is done by the testing department, and there is a separate department for providing after sales services like maintenance. And basically in development cycles, our major focus is on focus is on each and every part, but
what does the software life cycle says? That it says that maintenance requires maximum efforts. Maintenance requires maximum efforts. By a diagram, we can see this, that how much efforts if something goes wrong. If something goes wrong at the client side, once your software is developed, tested, and released to the customer, and client is using it. So some errors are some errors occur when clients or customers are using that particular software, and companies in agreement during that particular time to provide the solution for some error. Then that maintenance might cost a lot. This is, and it is about the 60% of the total efforts. The requirement analysis shows that it is requiring very minimal effort, that is near about 5 to 6%. Designing, so it is near about 8%. Coding, near about 12 to 15% effort is required. Testing, it's requiring near about 18% efforts. But in case of maintenance, it goes to 50 to 60%. You can very well imagine that it is how much backtrack a developer engineer has to developer engineer has to perform. So basically, in reality, if there is a error of a semicolon, in the code, then you can imagine about the efforts input by the developer to find that particular error. So nowadays, these life cycles are developed, and these are known as error prevention approach. And these are known as error prevention approach. Phases between feasibility study and testing. जो आपका फिजिबिलिटी स्टडी और टेस्टिंग के बीच में फेज है, उसको हम लोग बोलते हैं डेवलपमेंट फेज है, जिसमें हम लोग जो है हमारा सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हैं. अमंग ऑल लाइफ साइकिल्स, मेंटेनेंस फेज जो है, मेंटेनेंस फेज में सबसे ज्यादा हमारा एफर्ट लगता है. जैसे कि मैंने अभी कहा कि अगर कोई एरर हो गई तो हमें नहीं पता कि वो हमारे लाइफ साइकिल मॉडल के कौन से फेज में है. सो सपोजिंगली इट इज इन द लास्ट फेज, or it is in the first phase or somewhere in the middle. तो developer has to look at each and every phase कि किस phase में ये गड़बड़ हुआ, टेस्टिंग टीम को फाइंड आउट करना पड़ेगा. फिर टेस्टिंग टीम फाइंड आउट करेगी, फिर वो डेवलपमेंट टीम के पास जाएगा. ठीक है. अमंग डेवलपमेंट फेजेस, टेस्टिंग फेज कंज्यूम्स द मैक्सिमम एफर्ट्स. देयरफॉर we are nowadays in a tradition to develop the software using a life cycle model so that there is minimal error at the end. I said there is minimal error at the end. No one can guarantee you that software developed or the product developed by the company is a 100% error free. 100% error free. ठीक है. Let's proceed further. Most organization usually define standards on output कि हमारे पास जो हर एक फेज के बाद जो आउटपुट आएगा वो किस तरह का होगा. स्टैंडर्ड्स ऑन आउटपुट, और हर एक फेज के अंदर हम एंटर कब करेंगे और कब उस पर्टिकुलर फेज से हम लोग एग्जिट होंगे. जब एक पर्टिकुलर फेज से हम एग्जिट होंगे तब जाके हम दूसरी फेज के अंदर एंटर करने वाले हैं. आल्सो प्रिस्क्राइब स्पेसिफिक मेथोडोलॉजीज. हमारे पास स्पेसिफिक मेथड्स हैं. हमारे पास स्पेसिफिक मेथड, स्पेसिफिकेशंस क्या होंगे हमारे पास, डिजाइन हमारा क्या होगा, टेस्टिंग हम कौन कौन सी करेंगे और कैसे कौन सी करने वाले हैं, किस तरह से हम हमारे प्रोजेक्ट्स को मैनेज करने वाले हैं. ठीक है. गाइडलाइंस क्या बोलती है, तो ये सारी गाइडलाइंस हैं, इन सबको हम लोग बोलते हैं दैट इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी. क्योंकि ये बात तय हो चुकी है कि अगर कोई भी हमें सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, उसको हमको सिस्टमैटिकली ही डेवलप करना पड़ेगा ताकि हमारे पास एंड में जो हमारा एंड रिजल्ट आए वो अच्छा आए और उसमें बहुत ही मिनिमल एरर हो. मीन्स नियर अबाउट, वी वांट नियर टू जीरो एरर. ठीक है. वी वांट नियर टू जीरो एरर्स.
सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस बेसिकली उनकी उम्मीद क्या होती है कि जो भी हमारे नए इंजीनियर्स आए हैं वो जल्दी से जल्दी हमारी वर्किंग कल्चर को समझ लें, आईटी कंपनीज में वर्किंग कल्चर को समझ लें, सॉफ्टवेयर किस तरह से डेवलप होता है उस बात को वो लोग समझ लें। फ्रेश इंजीनियर्स उम्मीद क्या है कि वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी को समझ लें। ठीक है, एम क्या है फिजिबिलिटी का स्टडी का, कि हम क्यों एफर्ट्स लगा रहे हैं, क्यों एनालिसिस कर रहे हैं कि हमारा प्रोजेक्ट बन पाएगा नहीं बन पाएगा, क्योंकि एवरी कंपनी का एक लिमिटेड एक फंड है कि उस पर्टिकुलर फंड में उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को उन्हें इंप्लीमेंट करना है, एंड वेदर फाइनेंशियली, पहली बात बोलिए कि फाइनेंशियली क्या वो पॉसिबल है कि नहीं है, क्योंकि कंपनी हैज टू हायर द टेक्निकल पर्संस। ठीक है, सेकंड, क्या मार्केट में वो पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी या उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में ट्रेन्ड इंजीनियर्स हैं, अवेलेबल हैं या नहीं है, जिनसे कंपनी काम करवाएगी अपना। ठीक है, 9 आवर्स अ डे, 5 days a week and 9 hours a day. Roughly understand what customers want. Customers की जरूरत क्या है। ठीक है, दिस इज व्हाट वी आर स्टडीइंग अबाउट द फिजिबिलिटी। कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट क्या है, डिफरेंट डेटा जो हमें सिस्टम में इनपुट करना है, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा हमारे पास, हमको किन डेटा की जरूरत है, प्रोसेसिंग हमारी कैसे होगी, डिफरेंट डेटा हमारे पास क्या है, प्रोसेसिंग नीड्स क्या है हमारे पास किस तरह का आउटपुट आएगा। ये टेंटेटिवली रियल, हम लोग अपने एकेडमिक्स में कुछ काम करते हैं तो हमें पता रहता है कि हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो किस तरह का टेंटेटिव डेटा आउटपुट में आएगा। कंस्ट्रेंट्स क्या है, कंस्ट्रेंट मींस डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडीशंस क्या है जो कि हम अपने काम करते वक्त हमारे पास जब हम काम कर रहे हैं, कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, टेस्टिंग का काम कर रहे हैं, मेंटेनेंस का काम कर रहे हैं, तो हमारे पास कंडीशंस क्या है, किन कंडीशंस को हमें मैंडेटरीली मानना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटीज, क्या क्या टास्क हम जो है फिजिबिलिटी स्टडी के टाइम पर परफॉर्म करते हैं, क्या क्या टास्क हम लोग परफॉर्म करते हैं। वर्कआउट एंड ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम, ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग की हमारी जो ओवरऑल प्रॉब्लम है क्या हमें वो प्रॉब्लम का ओवरऑल समझ में आई कि किस तरह से हमारा जो फ्लो पाथ रहेगा, किस तरह से हमारा प्रोजेक्ट काम करेगा, हम क्या इनपुट देंगे, किस तरह का हमारा आउटपुट आएगा। तो बेसिकली एक ब्रीफ आइडिया होना चाहिए कि हमारा प्रोजेक्ट किस तरह से काम करने वाला है और हमारा प्रोजेक्ट एक्चुअल में जो हम डेवलप करने वाले हैं वो है क्या। ठीक है, फॉर्मुलेट डिफरेंट सोल्यूशन स्ट्रेटेजीज, वी आर ट्राइंग टू डेवलप डिफरेंट सोल्यूशन strategies for that. Examine alternate solution strategies after if suppose we are having some problem, so we try to develop different solution strategies. Like in design and analysis of algorithm, there are different strategies for developing a solution. ठीक है, this is one example. ठीक है, so we try to find out try to examine different solution strategies, whether different strategies जो हैं वो हमारे अलग अलग क्राइटेरिया को पूरा कर पा रही है या नहीं कर पा रही है, हमारे मतलब डिफरेंट क्राइटेरियाज में वो फिट हो रही है नहीं हो रही है, इस तरीके से। रिसोर्सेज रिक्वायर्ड कितने हैं हमारे पास, कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट कितना आएगा। बेसिकली रिसोर्सेज रिक्वायर्ड में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, टेक्निकल मैन पावर, कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट कितना आएगा, बिकॉज अल्टीमेटली कंपनी हैज टू पे टू इट्स एम्प्लॉइज, कंपनी हैज टू बियर अदर एक्सपेंसेस आल्सो, एंड उस पर्टिकुलर सॉफ्ट प्रोजेक्ट को डेवलप करने में अल्टीमेटली कितने मंथ्स, कितने हाउ मच ईयर, कितने ईयर्स लगने वाले हैं, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द सॉफ्टवेयर। ठीक है, लेट्स प्रोसीड फर्दर। नेक्स्ट एक्टिविटी इज द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, दैट हाउ मच द कंपनी इज चार्जिंग फ्रॉम इट्स क्लाइंट्स। ठीक है, and how much will be the expenses, and ultimately how much will be the benefit to the company after bearing all the expenses. So company performs cost benefit analysis, and you may determine that none of the, and next is that कि some cases में arise, इस तरह के कुछ केसेस आ सकते हैं कि जो आपका सॉफ्टवेयर वो फिजिबल नहीं है, सॉफ्टवेयर फिजिबल नहीं है बिकॉज ऑफ इट्स हाई कॉस्ट। इस तरह की सिचुएशन हो सकती है कि जो हम सॉफ्टवेयर बनाना चाह रहे हैं जो, ठीक है, वो आपका फिजिबल
नहीं है। तो व्हाट कैन बी दी पॉसिबल रीजंस? एक तो उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, दैट कंपनी विल गेन नथिंग आफ्टर लॉट्स ऑफ वर्क। रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स, उसके लिए जो हमारे पास रिसोर्सेज चाहिए वो सारे के सारे रिसोर्सेज जो है वो मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है। लाइक हार्डवेयर प्रोडक्ट्स, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स जो भी रिक्वायर्ड है उसके लिए टेक्निकल रीजंस, देयर माइट बी अदर टेक्निकल रीजंस दैट कि टेक्निकल मैन पावर अवेलेबल ही नहीं है उस पर्टिकुलर डोमेन में, टेक्निकल ट्रेंड इंजीनियर्स अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। दिस माइट बी, और जिस अदर रीजंस में अगर हम बोलें कि हार्डवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जितनी कैपेसिटी का रैम इसको चाहिए इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए, वो अभी टेक्निकली फिजिबल नहीं है, ठीक है। रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन एम क्या कहता है? एग्जैक्ट, हमें क्या समझना है कि कस्टमर का एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट क्या है, कस्टमर एग्जैक्टली क्या चाहता है। रिक्वायर we have now moving to the next phase. Feasibility study was the first, and this result analysis and specification is the second. And requirement analysis, as the name says, that we have to understand what is the exact demand of the client, what is the exact demand of the client, and we need to take a note of all the demands of the client, and we have to document them properly. Exact demand of the client, and second, we need to document them properly. Consist of two distinct activities. एक तो ये जो वाला एनालिसिस वाला पार्ट है, ये दो डिफरेंट एक्टिविटीज का बना हुआ है। पहला पार्ट क्या है? रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस, कि आपकी किस तरह से आप जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं क्लाइंट्स की, उनको आप किस तरीके से गैदर करोगे। और बेसिकली गैदर करने के अलग अलग तरीके हैं, और उसको गैदर करने के बाद आप किस तरीके से उनका एनालिसिस करोगे। रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, आप किस तरह से उन रिक्वायरमेंट्स को स्पेसिफाई करने वाले हो, ठीक है, स्पेसिफिकेशन, ठीक है। गोल्स ऑफ रिक्वायरमेंट एनालिसिस, गोल्स क्या है? कलेक्ट और रिलेटेड डेटा फ्रॉम द कस्टमर, सारा का सारा जो रिलेटेड डेटा है वो हमें कस्टमर से कलेक्ट कर लेना है। दिस इज द अल्टीमेट गोल ऑफ रिक्वायरमेंट एनालिसिस, की सारा डेटा हमें जो है कस्टमर से कलेक्ट करना है। उसको कस्टमर से कलेक्ट करने के बाद, पहला स्टेप, कलेक्ट करने के बाद हमको उसको एनालाइज करना है कि जो डेटा हमने कस्टमर से कलेक्ट करा है, क्या उस पर्टिकुलर डेटा को लेके हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, एक जो सॉफ्टवेयर डेवलप करने का ऑब्जेक्टिव है, जिस भी पर्टिकुलर डोमेन का हम सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, क्या उस पर्टिकुलर डेटा जो हमने कलेक्ट करा है और उसका एनालिसिस करा है, उससे वो ऑब्जेक्टिव पूरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। This is the ultimate goal. Find out any inconsistencies and incompleteness in the requirement. हमने जो डेटा कलेक्ट करा है उसमें कोई इनकंसिस्टेंसी तो नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अकाउंटेंसी का सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, ठीक है, डेटा कलेक्ट कर लिया आपने किसी दूसरे डोमेन का, एकेडमिया का या किसी सेल्स का डेटा कलेक्ट कर लिया। तो अब जब आपको अकाउंटेंसी का सॉफ्टवेयर बनाना है, तो जो आपका मेजर डेटा आएगा वो आपका कहीं ना कहीं अकाउंट्स वर्क से रिलेटेड मेजर डेटा आपका होना चाहिए, कहीं ना कहीं मेजर जो डेटा होना चाहिए। मैंने कहा कि मेजरली जो रिलेटेड होना चाहिए, इट शुड बी रिलेटेड टू योर अकाउंट्स, ठीक है। रिजॉल्व ऑल इनकंसिस्टेंसी, सारी की सारी इनकंसिस्टेंसीज आपको वो रिजॉल्व करनी पड़ेंगी। एंड इनकम्प्लीटनेस जो डेटा में है, क्योंकि जिसकी वजह से आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन पूरा नहीं हो पा रहा है, वो आपको पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। रिक्वायरमेंट गैदरिंग रेलेवेंट डेटा यूजुअली कलेक्टेड फ्रॉम एंड यूजर्स। अब जो भी डेटा है उसको हम हमारे एंड यूजर्स से कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली एक कंपनी अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, तो कंपनी का जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट है उससे रिलेटेड सॉफ्टवेयर बनना है अकाउंटेंसी का। तो जो भी डेटा रिकॉर्ड हमें कलेक्ट करना पड़ेगा वो किससे कलेक्ट होगा? हमारा कंपनी के जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट के मेंबर्स हैं, चाहे वो उस कंपनी में 20 साल से हो, चाहे वो साल भर से हो, सबसे हमें बात करनी पड़ेगी। हमें जो है वो सबसे बात करनी पड़ेगी। एंड
गैदर डेटा कलेक्ट करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। वन इज कि आप सबको बुला के मीटिंग बुला के बात करें, सबसे सबकी राय जानना चाहें कि आप कि हम जो है सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं, आपको उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में क्या चाहिए। 1 or 2 persons विल बी देयर इन द मीटिंग टू नोट डाउन द रिक्वायरमेंट्स। एक क्वेश्चन या एक सर्वे फॉर्म भर के दे दें इस तरीके से। या फिर हम इंटरव्यूज कंडक्ट करें, डिस्कशन आपका कैसे भी हो सकता है, 1 to 1 एक मीटिंग बुला के बात करें, लाइक दैट, ठीक है। फॉर अ बिजनेस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, इस एग्जांपल ही वही दिया है, बिजनेस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, सब सारे अकाउंटेंट्स का हमने एक इंटरव्यू ले लिया। वी आर इंटरव्यूइंग ऑल द अकाउंटेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। डेटा यू इनिशियली कलेक्ट फ्रॉम द यूजर्स, डेटा जो हम इनिशियली कलेक्ट करते हैं उसके अंदर काफ़ी सारी कॉन्ट्राडिक्शंस होती हैं, और वो डेटा जो है वो आपका कई केसेस में एम्बिगस हो सकता है। अब इसका एक रिसेंट एग्जांपल मैं बताता हूँ कि इन्फोसिस कंपनी ने इनकम टैक्स इंडिया की वेबसाइट बनाई थी। तो बाद में वो वेबसाइट में जो है ITR फाइल करने के लिए वेबसाइट बनी थी, उसमें बाद में फिर चेंजेस भी हुए थे, ठीक है। तो दिस इज द रियल सिनेरियो कि आपको कोई सॉफ्टवेयर बन गया तो उसमें पर्टिकुलर बाद में चेंजेस करने की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। तो हर एक, जैसे कई सारे यूजर्स हैं, जैसे अकाउंट्स डिपार्टमेंट में कई सारे अकाउंटेंट्स हैं, तो ऐसा हो सकता है कि एक जो पर्टिकुलर पर्सन है उसको सारे कंपनी के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सारा प्रोसीजर कैसे रन करता है, ऐसा पॉसिबल है कि सारे उसको कंप्लीट इंफॉर्मेशन ना हो, ऐसा पॉसिबल है। तो इसलिए इसने बोला कि हम जो बात करेंगे, हम जो डेटा कलेक्ट करेंगे, हम सबसे बात करके डेटा कलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसलिए इसमें यहाँ पे उन्होंने बोला है कि वी विल कॉल अ ग्रुप मीटिंग ऑफ ऑल दी मेंबर्स ऑफ द अकाउंट डिपार्टमेंट की, और हम सबसे बात करेंगे। वी विल ट्राई टू हैव डिस्कशन विद ऑल द मेंबर्स ऑफ द अकाउंट्स डिपार्टमेंट, ठीक है। टिपिकली एज अ पार्शियल एंड कंप्लीट व्यू, ठीक है। तो यही वाली बात थी, ठीक है। एम्बिगिटीज एंड कॉन्ट्राडिक्शंस मस्ट बी आइडेंटिफाइड। तो मेन एम क्या है कि आपका जो कॉन्ट्राडिक्टरी वाली बात है, जहाँ पे कुछ लोगों की, ऐसा भी हो सकता है कि मीटिंग में जब आप बात करें तो 2-4 लोगों की बात आपस में कॉन्ट्रडिक्ट हो जाए, तब उस केस में सोल्यूशन ये निकलता है कि जो उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में सबसे सीनियर बंदा है, सबसे पुराना बंदा है, तो ये बेसिकली होता ही है कि जो ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी सबसे पुराने लोग होते हैं, उनको कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन की जो कंप्लीट वर्किंग चेन है, कहाँ से कैसे से काम होना है और कौन करेगा उस पर्टिकुलर काम को, ये उन्हें पता रहता है, ठीक है। तो एम्बिगिटीज, कॉन्ट्रडिक्शन आइडेंटिफाई करने हैं, रिजॉल्व बाय डिस्कशन विद कस्टमर्स। तो जो आपके क्लाइंट्स हैं उनसे डिस्कशन करके जो है आप उनको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनके लिए उनको हम नोट डाउन करते हैं और उनको एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में लेके आते हैं, और उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को हम लोग बोलते हैं SRS, एंड दैट इज जो उसका फुल फॉर्म है दैट इज सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, ठीक है। इंजीनियर्स डूइंग रिक्वायरमेंट, जो इस तरह का काम करते हैं उनको हम लोग इंडस्ट्रीज में बोलते हैं दैट इज एनालिस्ट। इंजीनियर्स परफॉर्मिंग सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस, एंड अकॉर्डिंग टू मी पर्सनली, रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन पार्ट, जो ये आपका रिक्वायरमेंट्स को गैदर करने वाला काम है, ये भी आसान नहीं है। अब बेसिकली अब आप इसको रियल सिनेरियो से करके देखो कि जब आप कोई मीटिंग कॉल करोगे रियल लाइफ में, तो जरूरी नहीं है कि मीटिंग में सारे ही लोग ही आपको कुछ बता रहे हो, दैट एवरीबडी इज ईगर टू टेल यू समथिंग लाइक दैट, कि सर आई विल टेल यू समथिंग लाइक दैट, नॉट लाइक दैट। कुछ 2-4 लोग हमेशा उसमें ऐसे भी होंगे जो एकदम साइलेंट मोड में बैठे होंगे, और उनको सारी बात पता होगी कि किस तरह से वर्किंग प्रोसीजर क्या है, किस तरह से सारा काम होता है। तो some people are introvert and you have to dig them out, you have to extract the information from those particular persons, ठीक है। So next phase is the design phase, and there are other phases also, and I will proceed in my next class, है ना। Thank you all.